सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने पर बरहमी जताते हुए कहा कि 20 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सूख गई है, लेकिन हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। हरीश राव ने पीर को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत में आपाशी के पानी की कमी की वजह से तकरीबन 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें सूख गई हैं। खुद किसानों का कहना है कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के दौर में उन्हें कभी इस तरह की तकालीफ का सामना नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए बरहमी जताई और कहा कि काश्तकारी के लिए पानी न मिलने से किसान सख्त परेशान है। हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से कहा है कि वो मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा अदा करे। నిన్న వరంగల్ జిల్లా దేవరుప్పుల మండలం లక్ష్మీబాయి తండాకు నేను నాతో పాటు గౌరవ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కడియం శ్రీహరి గారు, మాజీ మంత్రి దయాకర్ రావు గారు, మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ గారు, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మేమందరం కూడా క్షేత్రంలో రైతుల యొక్క పరిస్థితి చూడడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆ లక్ష్మీబాయి తండాకు వెళ్ళినప్పుడు రైతుల కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు, ఆవేదన ప్రత్యక్షంగా చూసాం. ఒక రైతు సత్యమ్మ, ఆవిడ పొలంలోకి మేము వెళ్ళాం. భర్త పేరు నరసింహ అనుకుంటా. 4 బోర్లు వేశారు. 4 బోర్లు వేస్తే చుక్క నీళ్లు పడలేదు. బావులు పూడిక తీయడానికి క్రేన్లు కిరాయికి తెచ్చుకొని పూడిక తీస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు 4 లక్షల రూపాయలు అప్పయిందని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో ఆవేదనతో మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అట్లా ఒక్కొక్క రైతు, లక్ష్మి అనే రైతు 6 బోర్లు వేశానని, సత్యమ్మ 4 బోర్లు వేశానని, జంకు 9 బోర్లు వేశానని, శివశంకర్ 6 బోర్లు వేశానని, విజయ 4 బోర్లు వేశామని, వేసిన పంటలో బారాన్ని ఎండిపోయింది, చారాన్నే మిగిలింది, అది కూడా వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ఆందోళన రైతుల కళ్ళల్లో కనపడ్డది. ఇంత జరుగుతూ ఉంటే, పరిస్థితి క్షేత్రస్థాయిలో ఇంత గంభీరంగా ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చీమగుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఆ రైతులతో నిన్న నేను మాట్లాడినప్పుడు గత 10 ఏళ్లలో ఎన్నడూ ఇట్లాంటి పరిస్థితి రాలేదు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నాక ఒక గుంట కూడా ఎండలేదు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది. మా తండాలో తాగడానికి కూడా నీళ్లు రావడం లేదు. వారం రోజులకు ఒక్కసారి మంచినీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ అక్కా చెల్లెలు ఎంతో ఆవేదన వెలుబుచ్చడం జరిగింది. साबिक वजीर व एमएलए जी जगदीश रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से दहली शराब पॉलिसी घोटाले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की जानिब से ये कहने पर कि दहली शराब पॉलिसी मामले में उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें शुबा है कि किशन रेड्डी भी इस केस में मुलविस हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर किशन रेड्डी के पास सबूत मौजूद हैं तो उन्होंने 2 साल से इस बात का इंकशाफ क्यों नहीं किया था। बीआरएस रहनुमा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जी किशन रेड्डी की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है। ఆ కిషన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడేం మాట్లాడతాడో ఆయనకు సోయలేదు.
మొన్న కేసీఆర్కు కవితమ్మ కేసుకు తెలంగాణకి ఏం సంబంధమే లేదన్నాడు. నిన్న ఏదో నిరూపిస్తా అంటున్నాడు. మీడియాలో స్పేస్ తప్ప ప్రజల్లో బేస్ లేని నాయకుడు కిషన్ రెడ్డి. మీడియాలో స్పేస్ తప్ప ప్రజల్లో బేస్ లేదు. ప్రజల్లో బేస్ ఉంటే ప్రజల సమస్యలు గుర్తుంటాయి, ప్రజల సమస్యలు దృష్టికి వస్తాయి, ప్రజల సమస్యల్ని ప్రతిబింబించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కనీస సోయి లేదు. లక్షలాది ఎకరాలు ఎండుతుంటే ఒక మాట లేదు. ఏమైనా కేసులు, జైళ్ళు ఈయన చేస్తాడట. ఈడీ చేసే విచారణ ఈయన చేస్తాడట. నేను విచారణ చేస్తా వస్తారా అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉంది. బీజేపీ ఉసుగొలిపితేనే साबिक वजीर और एमएलए गाली जनार्दन रेड्डी अपनी अहलिया के हमरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गाली जनार्दन रेड्डी इब्तिदा में भारतीय जनता पार्टी में सरगर्म थे, ताहम साल 2023 में कर्नाटक के इंतखाबात से कबल उन्होंने बीजेपी को खैराबाद कहकर अपनी पार्टी के आरपीपी बना ली थी। असेंबली इंतखाबात में उन्हें उस पार्टी से एक नशिस्त पर कामयाबी मिली थी, ताहम उनकी अहलिया को शिकस्त का सामना था। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कर्नाटक की सियासत में कई पेशरफ्त देखने को मिल रही है। गाली जनार्दन रेड्डी पीर को अपनी अहलिया के साथ कर्नाटक के साबिक वजीर आला येदियुरप्पा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्षा पार्टी को बीजेपी में जम कर दिया। आपको याद दिला दें कि गाली जनार्दन रेड्डी गैर कानूनी कानूनी मामले में बरसों जेल में रहे हैं। उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इतना ही नहीं, वो हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। उनके बीजेपी में शामिल होने पर ये कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात बर्खास्त हो जाएंगे, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके की कांग्रेस उम्मीदवार पी सुनीता महिंदर रेड्डी ने कुकटपल्ली वन सिटी गेटेड कम्युनिटी में मुनाकिद होली तकरीबात में शिरकत की। हिंदुस्तान भर में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। सियासी कायदीन ने भी मुख्तलिफ मकामात पर होली तकरीबात में शिरकत की। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता महिंदर रेड्डी भी कुकटपल्ली वन सिटी गेटेड कम्युनिटी में होली तकरीबात में शरीक हुई और खवातीन के साथ होली खेली। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से खिताब किया और कहा कि त्योहारों से लोगों में इत्तेहाद पैदा होता है। उन्होंने अगले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। नंदियाल के जेडपीटीसी गोकुल कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर वाईएस शर्मिला से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासत आंध्र प्रदेश में जहां असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, हर रोज सियासी जमातों के कायदीन के दीगर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जा रही है। नंदियाल जेडपीटीसी गोकुल कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर वाईएस शर्मिला से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। वाईएस शर्मिला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। गोकुल कृष्णा रेड्डी ने कांग्रेस की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करने और पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। भारत राष्ट्रीय समिति ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से गदम श्रीनिवास को उम्मीदवार नामजद किया है।
आइंदा मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्र समिति की जानिब से तमाम 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 25 मार्च यानी पीर को बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गदम श्रीनिवास को हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकाबला करने के लिए नामजद किया है। आपको बता दें कि बीआरएस लीडर गदम श्रीनिवास यादव बीजेपी एमएलए राजा सिंह के सख्त हरीफ के तौर पर जाने जाते हैं और वो कई मौकों पर उनके खिलाफ बात कर चुके हैं। श्रीनिवास गोशा महल के रियासती असम्बली इंतखाबात में टिकट की तौक़ो कर रहे थे, ताहम नंद किशोर व्यास का इंतखाब किया गया था। गदम श्रीनिवास यादव ने साल 2021 में भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार की थी और उन्होंने सन 1988 में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के साथ अपने सियासी करियर का आगाज किया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के मरहूम लीडर जावेर पटेल के गमजदा खानदान से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और हैदराबाद के नामवर ताजिर जावेर पटेल 13 मार्च को इंतकाल कर गए थे। कांग्रेस पार्टी के साबिक रहनुमा वो डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जावेर पटेल की रिहाइशगाह जाकर गमजदा खानदान को पुरसा दिया और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहने का तयक़ुन दिलाया। इस मौके पर जावेर पटेल के फर्जंद मोहम्मद पटेल के अलावा जन्नत पटेल, दिलावर पटेल, मुमताज पटेल, माजिद पटेल, रहीम पटेल, आमिर पटेल, इम्तियाज पटेल व दीगर मौजूद थे। वीरप्पन की बेटी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। अगवाकार, हाथी का शिकार करने वाला और सद्दल की लकड़ी के स्मगलर वीरप्पन की बेटी विदे वीरप्पन 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। विदे वीरप्पन एक वकील है जिसने बेंगलोर में कानून की डिग्री मुकम्मिल की है। वो कृष्णगिरी लोकसभा सीट के लिए एनटीके की नुमाइंदगी करेंगी। आपको याद दिला दें कि विदे वीरप्पन ने साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, ताहम अब वो एनटीके में तब्दील हो गई हैं। ये भी याद रहे कि वीरप्पन ने सीतामंगलम के जंगलात के साथ साथ दीगर जंगलात के अंदर भी एक सल्तनत चलाई थी जो बतरतीब तमिलनाडु और कर्नाटक के एरवाड़ और मैसूर अजला में फैली हुई थी। ताहम 18 अक्टूबर साल 2024 को वीरप्पन को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने हलाक कर दिया था। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर और होली त्यौहार के मौके पर कुलसुमपुरा डिवीजन में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज होने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई है। वक्फे वक्फे से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और दीगर मुहिम भी चलाई जा रही है। माह रमजान और होली त्यौहार के मौके पर शहर में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए कुलसुमपुरा डिवीजन के कुलसुमपुरा, टपा चबूतरा और गुडी मलकापुर इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें तीनों पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अफसरान और सीआईएसएफ के अहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस अहदेदारों ने इस मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने और जराइम की सरगर्मियों में मुलविस होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। आज हम ये कुलसुमपुरा डिवीज़न में कुलसुमपुरा, टप्पा चपोतरा और गुलमर्कापुर एरिया में फ्लैग मार्च
हम कंडक्ट कर रहे थे। ये फ्लैग मार्च में हम तीन पुलिस स्टेशंस का और स्टाफ और CIFS जो पर्सनल भी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये होली का मौके पर कुछ नाखुशगवार इंसिडेंट्स नहीं होना और जो आइंदा जो इलेक्शन में सब लोग पूरा मन के साथ इलेक्शन में शामिल होना बोल के हमारा ये मकसद से DCP हम साउथ वेस्ट जोन का और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम ये काम करें। सब लोग हम पार्टिसिपेट हो गए इसमें। कितने लिमिट में? 3 लिमिट में होगा। 3 लिमिट में कुलसुमपुरा, टप्पा चकोतरा और गुड़ीमलकापुर एरिया। शहर हैदराबाद के बाग-ए-आमा में, जो कि आमतौर पर पब्लिक गार्डन कहलाता है, एक आरजी मंदिर को मुस्तकिल बनाने के लिए खुफिया तौर पर काम किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आरजी मंदिरों के पास खुफिया तरीके से कार्रवाई करते हुए रातों रात पुख्ता तामीरात का काम शुरू कर दिया जाता है। ताज़ा तरीन वाक़े में शहर हैदराबाद के बाग-ए-आमा में वाक़े एक आरजी मंदिर की पुख्ता तामीर के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि जवाहर बाल भवन के अहाते के पास वाक़े मंदिर को मुस्तकिल बनाने के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इसकी बाज़ अफराद की जानिब से तस्वीर कशी की गई है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुताल्लिका हुकाम इस बात का नोट लेते हुए कुछ इक़दाम करते हैं या फिर खुफिया तौर से जारी इस तामीराती कामों को जारी रहने दिया जाता है। खटकेसर मंडल के चंगी चरला में होली के मौके पर अक्सरियती तबके के अफराद ने मस्जिद में नमाज के वक्त लाउड स्पीकर पर गाने लगाए, जिसके बाद दो गिरोह के दरमियान तसादुम हुआ। तफसीलात के मुताबिक चंगी चरला की पिटल बस्ती में एक मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही थी। होली त्यौहार के मौके पर अक्सरियती तबके के कुछ शरपसंदों ने डीजे के साथ गाने बजाए। मुसलमान बरादरी की जानिब से जब एतराज़ किया गया और म्यूजिक बंद करने को कहा गया तो वो भड़क गए और इसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। कुछ अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गिरोह को मुंतशिर कर दिया। पीर को तकरीबन 200 VHP कायदीन ने चंगी चरला में एहतजाज किया और तसादुम होने वाले मुकाम पर जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। याद रहे कि माजी में हिंदू त्यौहार दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मिलकर मनाए जाते थे, मोहब्बतें बांटी जाती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदू त्योहारों के मौके पर मुसलमानों को हरासा करने, मसाजिद और मजहबी मकामात के करीब डीजे लगाकर इश्तियाल अंगेजी करने का रुझान देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के यूसुफ टेकरी में वाक़ दक्कन कबाब फूड कोर्ट पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में हैदराबादियों के लिए स्पेशल हलीम के अलावा हम अक़साम के लजीज पकवान दस्तयाब हैं। दक्कन कबाब फूड कोर्ट साल 2013 से जायकेदार हलीम, बीफ, मटन और चिकन से बने हमा अक़साम के पकवान जैसे ज़ाफ़रानी मरक, पत्थर का गोश्त, मखमली कबाब, शीख कबाब के अलावा बटर नान, मुख्तलिफ अक़साम के ठंडे मशरूबात मुहैया करवाता आ रहा है। माह रमज़ान में यहाँ पर ग्राहकों का हुजूम देखा जाता है। न सिर्फ आसपास के इलाकों से बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी ग्राहक स्पेशल हलीम और शीख कबाब वगैरह का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। दक्कन कबाब का डाइनिंग एरिया भी काफ़ी वसी है, फैमिली सेक्शन भी है और यहाँ का ओपन एयर डाइनिंग एरिया ग्राहकों की तवज्जो का मरकज़ है, जहाँ वो खुली फिजा में हैदराबादी खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। दक्कन कबाब के ओनर्स फसील खान, सैयद मुजाहिद हुसैनी और सैयद मोइन हुसैनी वो दीगर हैं जो कि दूर दराज से आने वाले अफराद को मज़ेदार डिशेस मुहैया करवाने के इक़दाम करते हैं।
Actually, I'm from Vizag. Here, I came for job. In Madhapur, I stay in Madhapur. I heard about this shop. It's so famous. So it was in a bucket list. So we have completed a bucket list. We liked the taste. It was so good. We liked it. We were thinking to have more two to three plates for this. कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? बढ़िया, झकास है एकदम तो. बोलिए भाई. आपका नाम? मोहम्मद फसीउद्दीन. कहाँ से आते हैं? बाजपल्ली से आते हैं. ये होटल के बारे में क्या कहना है आपको, दक्कन के बारे में? हाँ, हर साल आते हैं इधर. 5-6 साल से आता हूँ रेगुलर. टेस्ट कैसा है? बेहतरीन है, बेहतरीन है. डायरेक्ट इधर ही चाहता हूँ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. भाई हर साल की जैसा ये साल भी रमज़ान में डेक्कन कबाब अपने खिदमत के साथ मौजूद है. पत्थर का गोश्त, मरक, चिकन टिक्का, ये सब हमारे पास अवेलेबल है. अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 वैरायटी है अलग अलग, जिसमें भेजा, गुर्दा, पत्थर का गोश्त है, बकरे में रहेगा, मटन में, चिकन और बीफ तीनों में अवेलेबल है. और चिकन टिक्का, मलाई, पहाड़ी स्पेशल डिश आपके मखमली कबाब बोलकर बनाए हम लोग. चीज़ में रोल होकर आएगा वो. अल्हम्दुलिल्लाह. कितने साल से है? ये हमारा 2013 से है हमारा ये स्टॉल. रमज़ान में स्पेशल लगाते हम लोग. और भी कोई ब्रांच है? ब्रांड्स अभी एमएफ में भी हम लोग शुरू करें. एमएफ गार्डन जो टोली चौकी पे है, उसमें भी हम लोग हमारा ब्रांच करें. और 2 दिन के लिए किंग्स क्लासिक में भी चल रहा हमारा स्टॉल. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. हर साल के जैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी क्राउड अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास. कितने लोगों की कैपेसिटी है? अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स में और लेडीज़ में, इधर जेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह 19 टेबल है, लेडीज़ में भी करीब 25 टेबल है. फैमिली का, हाँ फैमिली का सेक्शन 2 है, एक इधर है और एक अंदर के तरफ है. अल्हम्दुलिल्लाह. रेट हमारे पास मटन 350 है और चिकन 200 है. अल्हम्दुलिल्लाह. यूसुफ टेकरी के पास है हमारा डेक्कन कबाब. आइए, हमारा आवाम से गुजारिश है कि आइए यहाँ का डेक्कन कबाब का लुत्फ़ उठाइए, यहाँ के डिशेस का. ये टोली चौकी यूसुफ टेकरी के पास है हमारा डेक्कन कबाब. रियासत तेलंगाना के जंगलात में गुज़िश्ता 5 दिनों से आग लगी हुई है, जिससे चरिंद परिंद परेशान हैं. जराये ने बताया कि मुलुगु जिले के ताड़वाई जंगलात गुज़िश्ता 5 दिनों से जल रहे हैं. नासा की जारी करदा तस्वीर खित्ते में जंगल में आग लगने की तस्दीक कर रही हैं. बताया गया है कि मुताल्लिका ओहदेदारों के पास आग बुझाने के लिए मुनासिब आलात दस्तियाब नहीं है, ताहम वो आग बुझाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं. शीशाचलम के जंगलात और अमराबाद टाइगर रिजर्व में भी इस साल मौसमी गर्मा में आग लगने का खतरा बना हुआ है. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.